آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہیلو، ہاں، ابھی بات نہیں ہو پائے گی، کہیں آیا ہوا ہوں۔ کہاں گئے؟ کہیں ہوں آیا ہوا۔ کب بات کیجیے گا؟ ابھی ہلو، پہلے یہاں سے نمٹ لوں، ہاں، ابھی پہلے یہاں سے نمٹ لوں، پھر اس کے بعد میں بتاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ کہاں سے یا تو کیوں؟ اثر کے بعد، ارے کہیں آیا ہوا ہوں نا، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ کس چیز کے سمجھدار آدمی ہو، کس چیز کے پڑھے لکھے آدمی ہو یار؟ کہیں دوا لینے کے لیے آیا ہوا ہوں، میڈیکل پہ ہوں۔ اچھا، 5 منٹ بات کر لیجیے، 5 منٹ۔ مفتی ہلو، صاحب بول رہے ہو کیا؟ ہاں ہاں، ہاں تو بعد میں بات کروں گا، ابھی کہیں آیا ہوا ہوں۔ بعد میں میرے پاس بھی ٹائم نہیں رہے گا۔ دن میں ڈال دی۔ ہاں، ہاں؟ بعد میں میرے پاس بھی ٹائم نہیں رہتا، ہم بھی پڑھاتے ہیں۔ ارے تو یہ تو تمہارا پڑھائی کا ہی ٹائم ہوگا، 2 ٹائم پڑھائی ہے کہ 1 ٹائم پڑھائی ہے؟ نہیں، ابھی صرف ایک ٹائم پڑھائی، زہر بعد گھنٹی خالی ہے۔ ظہر بعد گھنٹی خالی ہے؟ جی اچھا، آج جی، محفل ارحام کے تعلق سے بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ نہیں، سنیے نا، آپ جو اس ایک میرے واٹس ایپ میں بھیجے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کافر ہے، یہ وہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کافر ہے؟ اچھا، اس پر بات کرو گے تو میں نے تو اس میں 4 کو بولا ہے۔ جی جی، ہاں، ہو گئی ہماری دوائی۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب کتنے دینا؟ اچھا، 1 منٹ میں دوا کے پیسے دے دوں ذرا۔ لو ڈاکٹر صاحب، سٹرازین ڈال دی بھائی جان اس میں۔ چلو صاحب، اچھا صاحب۔ ہاں جی، اب بولیے کیا کہہ رہے ہو؟ برے ان لوگ کو کس کتاب میں، مطلب کہاں ان لوگوں کے فتوا لگائے کفر پر؟ یہ بتائیے کہ اب کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ ہے؟ اب کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بالکل نہیں۔ نہیں، اچھا، اگر اب کوئی نبی پیدا ہوا جی تو کیا ہمارے نبی آخری نبی رہیں گے؟ ہاں، بالکل رہیں گے۔ اچھا جی، اچھا، حضور کو آخری نبی ماننا یہ عوام کا خیال ہے یا علماء کا بھی؟ سب کا۔ سب کا؟ قرآن میں صاف ہے، خاتم النبیین، کہ آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جاہل ہے، کافر ہے۔ شیطان ہے، ملعون ہے، زدیق ہے، ہاں، ہے نا؟ بالکل، جی۔ ہاں، تو اگر کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ عوام کا خیال ہے، اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمان میں بالذات کچھ فضیلت نہیں، یعنی کوئی یہ کہے کہ حضور کی جو عدلت ہے یہ زمانے کے اعتبار سے افضل نہیں ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں، اگر ایسا کوئی عقیدہ رکھے تو وہ مسلمان ہی رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ نہیں، ہم آپ سے جو پوچھیں نا کہ آخری نبی کے بعد میں وہی کر رہا ہوں، وہی بات کر رہا ہوں۔ آپ یہ بتائیے کہ حضور تو خاتم النبیین ہیں، حضور آخری نبی ہیں، اور حضور جی کو آخری نبی عوام بھی مانتی ہے اور عالم بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی جی آپ بھی مانتے ہیں نا؟ آپ تو جی مفتی صاحب ہیں۔ جی، اچھا، تو جو یہ کہے کہ حضور کو آخری نبی ماننا یہ عوام کا خیال ہے، اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں، یعنی زمانے کے اعتبار سے حضور آگے پہلے آتے یا بعد میں، اس میں کوئی حضور کی فضیلت نہیں ہے، کوئی خاصیت نہیں ہے، مگر میں کہتا ہوں یہ ہمارے نبی کی ہی خاصیت ہے، کسی اور نبی کی خاصیت نہیں۔ آپ کا بھی یہی نظریہ ہے جو میں نے کہا ہے؟ میرے نبی اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، جی ہے یا نہیں؟ جی، یہ میرے نبی کی ہی شان ہے، کسی اور نبی کو یہ شان و شوکت، یہ شان و عظمت ملی، یہ مقام و مرتبہ ملا؟ نہیں جی، بے شک، سبحان اللہ۔ تو جو اس چیز کا انکار کرے کہ زمانے کے اعتبار سے حضور کی کوئی جو ہے خاصیت نہیں، کوئی فضیلت نہیں، وہ انسان مسلمان ہے یا کافر؟ کون پہلے کتاب پیش کیجیے، کون کتاب میں یہ لکھا کتاب ہوا؟ پیش کر دوں گا اور ابھی کروں گا انشاءاللہ، تمہارے واٹس ایپ پہ بھی بھیج دوں گا۔ کتاب کا نام بتائیے۔ تحذیر الناس۔ ہاں،
क्या लिखा है तहजीरुन इसमें? नास लिखा है कि हम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं ना, इसको आवाम का ख्याल बताया है। जी, क्या ये आवाम का ख्याल है सिर्फ? जरा भेजिए, व्हाट्सएप में भेजिए तो इंशाल्लाह अभी भेजूंगा। पहले मैं आपसे पूछ तो लूं। नहीं, पहले आप पहले की तरह भेजिए। आप इबारत में वहाँ कट कर रहे हैं, पहले भेजिए आप। मैं कट नहीं कर रहा हूँ, पहले हाँ ना में जवाब दे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको भेज रहा हूँ। सुनिए, आप पहले इबारत को पहले भेजिए, पेश कीजिए। आपने दावा किया, आपने कहा है कि अगर कोई आखिरी नबी का अगर कोई दावा करे तो वो शख्स क्या है, ठीक है? कि अल्लाह के रसूल के बाद अगर कोई कहे कि नबी आ सकता है तो क्या नबी में कोई फर्क पड़ने वाला है? आप पहले इसको आपने मेरी बात सुनी पूरी ढंग से? हम आपसे जो पूछ रहे वो कीजिए कि पहले आप व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट कीजिए तहजीरुन नास का। मैं कह रहा हूँ आपके जो हजरत हैं, आपके जो उलमा हैं, यानी मौलाना कासिम नानोतवी साहब जो हैं, वो कह रहे हैं आवाम के ख्याल में तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातिम होना बेईमाना है। सुनिए ना कि आपका जमाना अंबिया सादिक के जमाने के बाद और आप सब में आखिरी नबी हैं। तो ये जमाना पहले सुनिए तो मुफ्ती साहब, मुफ्ती अनस साहब बोल रहे हैं ना? मुफ्ती अनस साहब या कोई और हैं? जी अनस साहब। जी मुफ्ती अनस साहब, ये जो कहा जा रहा है कि आवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातिम होना बेईमाना है कि आपका जमाना अंबिया सादिक के जमाने के बाद और आप सब में आखिरी नबी हैं, तो ये सिर्फ आवाम का ख्याल है या आपका भी है? सुनिए ना, आपसे हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि आप उसको स्क्रीनशॉट मैं जितना पूछ रहा हूँ पहले उतना जवाब दे दीजिए। नहीं, पहले आप स्क्रीनशॉट भेजिए। बात कुछ और हुई यार, फिर बात आप कीजिए, हमको आप पूछिए हमसे। बात कुछ और हो ही नहीं सकती। नहीं, बात कुछ और हो ही नहीं सकती। अच्छा, जो मैंने पढ़ के, एक मिनट, जो मैंने पढ़ के बताया है वो आपको कैसा लगा, थोड़ा सा इसकी वजाहत करना है? नहीं, पहले आप भेजिए। फिर वही बात, पहले भेजिए। मैं भेज तो दूंगा, टेंशन मत लीजिए, मैं भेज दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट में आप फौरन भेजिए, उसमें क्या होगा, 1 मिनट तो लगभग करेगा, 1 सेकंड लगेगा। चलिए दे रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, दीजिए। और ये इबारत भी सुन लीजिए जरा, मैं सबको एक साथ भेज देता हूँ, ठीक है जी? लिखते हैं कि अगर बिलफर्ज वादे जमाना नबवी, ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी जमाने के बाद, ठीक है, वादे जमाना नबवी यानी हमारे नबी के जमाने के बाद कोई नबी पैदा हो, फिर भी खातमत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ फर्क ना आएगा। ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने अपने तरफ से बोला है, इसमें सिर्फ स्वाद लिखा है, ठीक है? जी। बस इसी सवाल पर हम आपका जवाब दे रहे हैं। हाँ, बस यही सवाल। अच्छा, एक मिनट जरा, एक बार कॉल आ रहा है, जरा इसको भी रिसीव कर लो, है ना? एक कॉल आ रहा है, जरा रिसीव करिए लेता हूँ। जी हजरत, मैं आपको लाइन पर जोड़ता हूँ, ठीक है? जी मुफ्ती साहब, अब फरमाइए। हाँ, आप क्या बोले कि बिलफर्ज मुहाल का वहाँ कैद लगा। मैंने कहा बिलफर्ज मुहाल? मैंने ये कहा है कि अगर बिलफर्ज, हाँ तो वही है ना, अगर बिलफर्ज बादे ज़माने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो, फिर भी खातमत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ फर्क ना आएगा। सुनिए ना, आपका नाम क्या जी हजरत, थोड़ा बताइए तो। अभी तक जनाब मेरा नाम नूर हसन है। नूर हसन, वही जो रिक्शा ड्राइवर से मशहूर है? आप जो चाहो कहो, मैं अगर आपको कुछ कहने लगूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, हम आपको यूट्यूब में सुने हैं कि आप रिक्शा ड्राइवर, इसी वजह से हम। अगर आप हलाली हैं तो फिर ये साबित कर दीजिए मैंने कहा हो कि रिक्शा ड्राइवर हूँ। ठीक, मैंने हमने अगर हलाली हो तो साबित कर दीजिए कि मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। मुझसे तो रिक्शा चलाने भी नहीं आती, मैं बड़ी गाड़ी का ड्राइवर हूँ और पिकअप से लेके और कैंटर तक चला देता हूँ। बहरहाल जो भी आप ड्राइवर है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ तुमने रिक्शा का जो नाम लिया, अगर हलाली है तो साबित कीजिए कि मैं रिक्शा का ड्राइवर हूँ। नहीं, साबित क्या? बहरहाल आप बातों को काटने के लिए और राह फरार तैयार करने के लिए जो है आप इधर उधर भाग रहे हैं। बस ये साबित कर दीजिए जो आप कह रहे हैं, बस इसको साबित कीजिए। और लीजिए आपके व्हाट्सएप पे ये सारे हवाले दे रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। नूर हसन वो काम नहीं करता, और आप भी जो बात कहेंगे मुझसे, आप भी जो बात कहेंगे मुझसे उसका सबूत भेजेंगे, ठीक है? ठीक। हाँ, आप जो कह रहे हैं कि बिलफर्ज वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है,
हाँ, अगर बिलफर्ज बाद ज़माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस किताब में नए आने वाले नबी को शैतान नहीं लिखा गया, मलऊन नहीं लिखा गया, जिस तरह के आपने कहा कि अगर कोई नबूवत का दावा करता है तो वो शैतान है, मलऊन है ना, काना दज्जाल है। छोड़िए ना, पहले सुनिए। ऐसे कैसे छोड़िए, ऐसे कैसे छोड़िए भाई, ऐसे कैसे छोड़िए? पहले मेरी बात को सुनते। आपने कहा कि मौलवी कन्नौतवी को तुमने काफिर कहा, उसको काफिर साबित कीजिए, किसने कहा है किसने नहीं कहा है? आप कह क्यों नहीं रहे? ये बताइए कि आपका, ये देखिए, आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं कि देवबंदी मौलवियों से मोहब्बत करते हैं, ये भी बताइए। मेरी बात को आप सुनिएगा, वही तो आप लोग को बहुत खराबी है। पहली बात तो मैंने तुमसे कहा था कि मैं कहीं हूँ, मना किया था मैंने आपको बात करने में, मगर तुमने मजबूरन यहाँ तुमने मुझे बात करने के लिए कहा कि नहीं 5 मिनट बात कीजिए, 5 मिनट बात कीजिए। तो आप, मैंने तुमसे मना किया था कि नहीं किया था, ये बताइए। सुनिए ना, अब हाँ ना में जवाब दीजिए, हाँ ना में। आप हमको, ये हमको करना बंद करो, हाँ ना में जवाब दो मुझे। फिर वही लेके तो हम तुमको दलील दे रहे, तुम दलील सुनोगे कि नहीं? दलील मुझे इसकी दो कि रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानना ये सिर्फ अबाखल है या आपका भी, आलिमों का भी है? पहले मेरी आप जो इबारत, अरे उसकी दलील, तुम्हारे दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है कि देवबंद के मौलवियों की मोहब्बत है, ये तो बताओ कम से कम। पहले आप सुनिएगा मेरी दलील। फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, तुम्हारे दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है या नहीं? सुनिए मेरी बात को सुनिए। बिल फर्ज से कोई काफिर होता है? खैरियत, सुनिए ना, बिल फर्ज की कैद से कोई काफिर होता है क्या? अच्छा, एक ये जो कहा है कि हुजूर को आखिरी नबी मानना ये अवाम का ख्याल है, अहले फहम पर रोशन होगा कि तक़द्दुम में तअख़ुर ज़माने में बिज़ात कुछ फजीलत नहीं, यानी अहले इल्म पर, दानिशमंदों पर। आपसे हम क्या पूछ रहे हैं कि अरे तुम क्या पूछ रहे हो, मैं क्या बात कर रहा हूँ उसका जवाब दो मुल्ला जी, मुफ्ती साहब, उसका जवाब दो जो मैं पूछ रहा हूँ। तो जवाब तो दे रहे, तो सुनिए। कहाँ दे रहे हो जवाब? कहाँ दिया है जवाब? सुनने की हिम्मत रखिए। हम सुनाइए कि बिल फर्ज से काफिर का फतवा लगेगा नहीं, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैंने एक ही चीज नहीं कही है, मैंने सारी चीजों की वजाहत भी की है। आपको दोनों चीज साबित करेंगे। पहले आप बोलिए ना कि बिल फर्ज से कोई काफिर होता है कि नहीं, हम आपसे। मुल्ला जी, मैंने सारी चीजें कही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने में किसी को कोई शक है? और अगर शक नहीं है तो तुम्हें, तुम्हारे मुल्ला जी को ये कहना चाहिए था कि अगर कोई दावा करे नबूवत का तो वो काफिर है, शैतान है, काना दज्जाल है। आप अपनी बात को बोल रहे यार मेरे मुल्ला जी, जो मैं कह रहा हूँ उसको क्लियर जवाब दो। रखिए हजरत, क्षमता रखिए। मैंने कहा था ना कि मैं कहीं हूँ, बैठा हुआ हूँ, कहीं पे आया हुआ हूँ, अभी बात नहीं होगी। मेरी दलील लीजिए ना, आप थोड़ा सा एक मरतबा बोलिए ना कि मैंने तुमसे कहा था कि नहीं कहा था कि अभी बात नहीं होगी, मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा, मगर तुमने मजबूर किया मुझे बात करने पर। अब मैं बात कर रहा हूँ, जवाब दीजिए। ये हुजूर को आखिरी नबी मानना ये अवाम का ख्याल है या आलिमों का भी है? फिर उधर आपको हम क्या पूछे? फिर वही बात, ये हम मत करो मुल्ला जी। नूर हसन के हाथ में जो एक बार आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह निकल के नहीं जाता है। मुल्ला जी फतवा नहीं लगा रहे, हुक्म नहीं लगा रहे, तुम पहले लगा चुके हो, दोबारा लगवाने की जरूरत नहीं है। तुमने कहा वो काफिर होगा। बिल फर्ज से काफिर होता है कि नहीं? फिर वही बात मुल्ला जी, मैं कह रहा हूँ हुजूर को आखिरी नबी मानना अवाम का ख्याल है, आलिमों का भी। तुम्हारा है कि नहीं है? आप अच्छा एक मिनट, हुजूर आखिरी नबी है कि नहीं है ये बोलो। सुनिए, हुजूर आखिरी नबी है या नहीं? आप कह रहे हैं कि हुजूर आखिरी नबी है या नहीं? हाँ है। मुल्ला जी, अगर कोई ये कहे कि हुजूर को आखिरी नबी मानना ये अवाम का ख्याल है, अवाम के ख्याल में आप ये कौन मुल्ला जी बता रहा है? तुम्हें कौन मुल्ला जी लुकमा दे रहा है? कोई नहीं, हम अकेले हैं। आप अरे दिखा सकते हैं। अच्छा चलिए मुल्ला जी, तो आपके उलमा का क्या अकीदा है कि अवाम का ख्याल ये है क्या कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना अंबिया साबिक के जमाने के बाद और आप सब में आखिरी नबी हैं? आपसे हम सिर्फ इतना पूछते हैं कि बिल फर्ज से उन्होंने, फिर वही बात, तो तुम्हारे मुल्ला जी ने, मैं अगर बिल फर्ज की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे मुल्ला जी ने ये बहसें की हैं। अच्छा एक मिनट, आप जो हैं कितने बहन भाई हैं जी? आप कितने बहन भाई हैं? वो सब छोड़िए, इधर उधर। अरे छोड़िए नहीं मुल्ला जी, तो तुम दलील पेश कर रहे हो ना, यहीं से अभी तुम्हें फांस दूंगा, इंशाल्लाह लटकाऊंगा तुम्हारे गले में, ये तुम्हारा फंदा डालूंगा। तुम कितने बहन भाई हो? सुनने का तुम क्षमता, कितने बहन भाई हो? तुम पहले मेरी बात पूछो। अरे तुम्हारे बाप के कितने बच्चे हैं? तुम पहले जवाब दो। सब में लास्ट कौन है तुम्हारे बाप का बच्चा? सुनो,
तुम्हारे बाप का बच्चा तुम्हारे लास्ट कौन है? फिर जो मन से बोलते हैं हम भी जानते फिर वो बात, मुल्ला जी तुम्हारे बाप का लास्ट बच्चा कौन है? सुनो, तुम्हारे बाप का लास्ट बच्चा कौन है, ये जवाब दो। सुनिए ने, आप जो है अदब, तुम्हारे बाप का लास्ट बच्चा कौन है, जवाब दो। अदब के दायरे में बात कीजिए। अदब के दायरे में बात कर रहा हूँ तुमसे, बैठो भाई, आप मत कीजिए, बैठो बैठो। ठीक है? मुल्ला जी तुम्हारे बाप का लास्ट बच्चा कौन है, ये बताओ। मैंने तुमसे मना कर दिया, मैं बात नहीं करूंगा, अभी कहीं आया हुआ हूँ, तुमने मजबूर किया मुझे बात करने पर। तो अब जब तुमने मजबूर किया तो जवाब दो। सुनो ना, अगर जब नहीं बात कर सकते, मैंने मना किया था तुमसे कि नहीं किया था कि मैं कहीं आया हुआ हूँ, बात नहीं करूंगा। तो फिर बाद में हम तुमको जबरदस्ती बोले थे नहीं? अरे मुल्ला जी तो अब मेरी बातों का तो जवाब दे दो। तुम्हारे बाप के कितने बच्चे हैं? तुम सिर्फ इतना हमको बता, बिल फर्ज से। तुम्हारे बाप का लास्ट बच्चा कौन है, ये बताओ। तुम्हारे बाप का लास्ट बच्चा कौन है? यही तो है, सुनने का क्षमता नहीं रखता है। तुम्हारे बाप का लास्ट बच्चा कौन है, ये बताओ मुझे। तुम हो या तुम्हारा कोई और है? अच्छा, आप मौलाना कासिम नानवी को क्या मानते हैं? मैं काफिर मानता हूँ। और अगर कोई मुसलमान माने तो वो भी काफिर है। उसके कुफ्र को अगर जानते हुए जो कोई मुसलमान मानता है तो उस पर कुफ्र का फतवा लगेगा ना? बिल्कुल लगेगा। ओ ठीक 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 मत कर, पहले ये बता तेरे बाप के कितने बच्चे हैं, और छोटा कौन है और बड़ा कौन है? सुनिए पहले मेरी बात को। मुल्ला जी मेरी बातों का ना तुमने उस टाइम जवाब दिया ना अब जवाब दे पा रहे हो। मैं कहीं बैठा हुआ हूँ, तुमसे मना किया था कि मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मैं कहीं बाहर आया हुआ हूँ। आप जो है मौलाना कासिम नानवी को। अरे मुल्ला जी मैंने तुमसे मना किया था कि मैं बात नहीं करूंगा पहले। अब जब तुमने मजबूर किया है बात करने के लिए तो जवाब दो। मौलाना कासिम नानवी। मुल्ला जी तुम्हारे बाप के कितने बच्चे हैं, ये जवाब दो। मौलाना कासिम नानवी फिर वो बात, कहा काफिर। हाँ वो पक्का काफिर है, एक नंबर का काफिर है। ठीक है, और अगर उसको कोई काफिर ना कहे तो उस पर आपने कहा कि वो भी उसके कुफ्र को जानते हुए जो उसके कुफ्र में शक करता है वो भी काफिर है। ठीक ठीक बोले। ठीक ठीक मत करो मुल्ला जी, पहले ये बताओ तुम्हारे बाप के कितने बच्चे हैं और लास्ट कौन है, आखिरी कौन है? आप लीजिए ना। अरे मुल्ला जी बताइए ना आखिरी कौन है, तुम हो आखिरी या तुम्हारा कोई और बहन भाई है आखिरी? आप पहले मेरे पास रुकिए। मुल्ला जी जवाब चाहिए, जब इसी पर बात हो रही है तो इसी पर बात करो, इधर उधर को मत भागो। जो मेरे भाग नहीं रहे हैं आपने। तो मुल्ला जी ये बता दो तुम्हारे बाप के कितने बच्चे हैं और लास्ट कौन है, आखिरी वाला कौन है? अभी मशीन चालू है कि बंद हो गई? आपने कहा कि मैं कह रहा हूँ मुल्ला जी अभी मशीन चालू है कि बंद हो गई? मौलाना कासिम नानवी। मैं कह रहा हूँ मुल्ला जी अभी भागो, उधर मत जाओ अभी। मैं कह रहा हूँ मशीन चालू है कि बंद हो गई? आपकी एक किताब। मुल्ला जी जाना ही नहीं है उधर अभी, मुल्ला जी अभी वहाँ जाना ही नहीं है। मुल्ला जी अपने अकाबिर का नाम मुफ्ती अनस देवबंदी उधर जाना ही नहीं है अभी। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे बाप के कितने बच्चे हैं? सुनकर आप क्यों भागते हैं? दलील। अरे यार मैं ये आधी अधूरी तुम बात छोड़ के भाग रहे हो। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे बाप के कितने बच्चे हैं मुझे ये बताओ। तुम्हारे बाप का अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए अब दोबारा से तो जो तुम्हारा अब लास्ट है वो लास्ट रहेगा, आखिरी रहेगा। आपसे हम क्या पूछे कि मुल्ला जी मेरी बात का जवाब दो, ऐसे बात नहीं होती है मुल्ला जी। तो काफिर मानते हैं तो हम बोले कि एक दलील लीजिए। मैं कह रहा हूँ मुल्ला जी तुम्हारे बाप के जितने बच्चे हैं वो बताओ। मैंने तुमसे मना किया था मैं कहीं बाहर आया हुआ हूँ, मैं बात नहीं करूंगा। तुमने मुझे मजबूर किया और जब मजबूर किया तो अब बात करो। बस ठीक है, इधर उधर को मत भागो बिल्कुल भी। सुनने का क्षमता रख तो मौलाना कासिम नानवी के। अरे मुल्ला जी तुम ये बताओ तुम्हारे बाप के बच्चे कितने हैं और आखिरी कौन है, लास्ट कौन है? तुम अपने घर की दलील क्यों नहीं लेते हो भाई? फिर वही बात, आलिम का बागी क्यों बनते हो? यहाँ दावा करके अहले सुन्नत और जमात है तो अहले सुन्नत की दलील क्यों नहीं लेते हो? लो दलील। सुनो मैंने कहा, मैंने सिर्फ एक का नाम नहीं लिया, मैं चारों को काफिर करूंगा, चारों को। मौलवी अशरफ अली थानवी, मौलवी रशीद अहमद गंगोही, मौलवी कासिम नानवी, खलील अहमद अमायतवी, ये चार के चार पक्के काफिर हैं, एक नंबर के। और पूरी दुनिया में जिस मुल्ला का दिल चाहे वो आओ मेरे सामने बात करो, ठीक है? काशीपुर रामपुर का मैं रहने वाला हूँ, ये नेट पे जाएगी ऑडियो। जिस मुल्ला जी का दिल चाहे तुम्हारे देवबंद के वो आके बात करे। असगर अली से आपकी जिस मुल्ला जी का तुम्हारे दिल चाहे वो आके बात करो। रामपुर जिले में बहुत मुल्ला जी है देवबंद के। आप दलील नहीं ले रहे। मुल्ला जी पहले ये बताइए कि आपके घर में कितने बच्चे हैं तुम्हारे बाप के? आप पहले दलील लीजिए ना कि आपने कासिम नानवी। अच्छा ला दलील दे, मुझे पता है तू बात नहीं करेगा ना, तू उस टाइम जवाब दे पाया ना आप जवाब देगा। ये मुफ्ती अनस है भाई, हजरत मुफ्ती अनस देवबंदी है ये मुफ्ती अनस देवबंदी है। लाओ स्क्रीनशॉट भेजो, मैंने तो तुम्हें भेज दिया, अब पहले मुझे भेजो। पहले दलील तो सुन लीजिए उसके बाद। ना ऐसे बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं मुल्ला जी, तुम्हें मैंने ये हवाले भेजे हैं, इन हवालों के साथ साथ तुम भी हवाला भेजो जो भेज रहे हो, जो बोल रहे हो।
ऐसे काम नहीं चलेगा मुल्ला जी, तुम्हें हवाला भेजा है मैंने। हम हवाला भेज दे रहे, आप टेंशन का है। भेजो। अरे मुल्ला जी पहले हवाला भेजो, उसके बाद में कोई बात करोगे। हाँ पहले तो हम तो पहले एक बार तो सुन लीजिए, जैसे आप हमको बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले इसी तरह हवाला भेजो जैसे मैंने भेजा। मुल्ला जी तुमने देख भी लिया है। अब जो तुम सबूत कासिम ननवी को जो कहे मुसलमान वो काफिर है, ठीक है। बिल्कुल, मेरे आला हजरत का, मेरे बुजुर्गों का यही अकीदा है। आपकी किताबें अरे मुल्ला जी हवाला पहले वो किताब भेजो। मुल्ला जी किताब भेजो, किताब भेजो। वो हवाला तो भेजो, सबूत तो भेजो। तुमने मुझसे सबूत मांगा, मैंने तुम्हें सबूत दिया। अब तुम्हारी भी ये जिम्मेदारी। मुसलमानों देखिए फैसला कीजिए। ये देवबंद के मुल्ला जी हैं, इनका नाम मुफ्ती अनस है। अब ये जो बात कह रहे हैं वो भेज नहीं रहे हैं। मैं मुझसे इन्होंने बात मांगी, मैंने भेज दी। जब इनके घर से दलील देते हैं तो ये दलील नहीं लेते अपने आका। अरे मुल्ला जी पहले हवाला तो भेजो। और मैंने इनसे पूछा कि दिल पर देवबंदियों का होता है तो ये उधर देवबंदियों का धर्म झूठ पर टिका है। कोई ये बात नहीं कर रही। देवबंदियों के धर्म की बुनियाद झूठ पर टिकी है। ये लोग झूठ ना बोले धर्म नहीं चलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम हवाला पढ़ रहे हो, भेजो। गुमराह करते हैं ये लोग, गुमराह कौम है और दूसरे को गुमराह करते हैं। मुल्ला जी मैं कहीं आया हुआ था, मैंने तुमसे मना किया मैं बात नहीं करूंगा, फिर भी तुमने मजबूर किया। मुल्ला जी आप बात कर रहे हो तो हवाला भेजो पहले। आपको जबरदस्ती बोले बात करने की। मुल्ला जी हवाला भेजो, तुमने जबरदस्ती की मेरे साथ, ऑडियो में मौजूद है, रिकॉर्ड है। अरे तुम्हें क्यों बता रही है? हवाला भेज दो। बोले क्या हवाला भेज दो, मौत क्यों आ रही है? हवाला भेज दो। बात करने के मैं मूड में ही नहीं था, मुझे बात करनी नहीं थी तुमसे भी। पहले तुमने मजबूर किया तो बात की है मैंने। पहले अरे उसके बाद हवाला तुम्हारा कोई यकीन नहीं है, देवबंदियों का यकीन नहीं है। तुम्हारे मुफ्ती ने अभी बलात्कारी करके और कसम खाली कुरान की, तुम्हारा कसम खाली कुरान पे हाथ रख के कसम खाई है, वो कह दिया कि मैंने कुछ नहीं किया है। और उसने यही तक भी कह दिया कि मुझे नशा कराया है। हाँ अबे शैतानो, नशा भी करते हो तुम शराबी हो, जुआरी हो। अहमद रजा वो शराबी था। अरे पकड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पे सारी ऑडियो सोशल मीडिया पे गश्त कर रही हैं यार। हाँ तो करने दीजिए, तो कहाँ हम कह रहे हैं कि मुल्ला जी जितनी देर तुम्हें बकवास करते हुए हो गई उतनी देर में तुम हवाला भेज देते हो, मुझे पढ़ के बताते। सुनिए ना, आप पहले सुनिए, हवाला भेजेंगे। हवाला भेजो। मुसलमानों देखिए फैसला आप कीजिए। इन्होंने मुझसे सबूत मांगा, मैंने भेज दिया। अब ये नहीं भेज रहे। अच्छा एक मिनट मुल्ला जी, मुफ्ती अनस साहब, ये बताइए आपने मुझसे सबूत मांगा, मैंने दिया या नहीं दिया? इतना हाँ ना में जवाब दें। हम आपसे कहाँ कह रहे कि मैं आपको सबूत नहीं भेजूंगा। मैंने ये नहीं, मैंने दिया या नहीं दिया, मैं तुम्हारी बातें नहीं कर रहा हूँ। मैंने दिया कि नहीं दिया ये बताइए। आपने दिया, हम कहाँ कह रहे कि नहीं दिया। अच्छा मैंने दिया, तो अब जिस तरह मैं मांग रहा हूँ आप भी दे दीजिए। तो पहले सुन लीजिए, उसके बाद ना बिल्कुल नहीं। जैसे तुमने नहीं माना वैसे मैं भी नहीं मानूंगा। अरे तुम्हारा यकीन नहीं है ना। देखिए मुसलमानों, ये है इनकी हकीकत। कसम खा लेते हो, कुरान तक की कसम खा लेते हो, तुम्हारा यकीन क्या सुनते क्यों नहीं जी? आप लोग 2 गो है, 4 गो है और फिर हवाला आप लोग होती है बरेलियों के सामने कांपते क्यों? बरेली से बात करते हुए तुम हवाला भेजो। तुम पहले सुने के क्यों सुनो? तुम्हारा यकीन नहीं है तुम्हारा हमें। मुल्ला जी हवाला भेज दीजिए, बात को पढ़ के बता दीजिए। करके तुम कसम खा लेते हो कुरान की, तुम्हारा क्या यकीन किया जाए? तुम लोगों को धोखा दे रहे हो, टोपी लगा के, कुर्ता लगा के और दाढ़ी लगा के, और कौन को गुमराह कर रहे हो। तुम्हारा यकीन क्या किया जाए? ये तो हमारे सामने कुछ नहीं। हम गर्दिश कर रही है। देखिए मुसलमानों, मैं इन मुफ्ती अनस देवबंदी साहब से कह रहा हूँ कि जो हवाला आप पढ़ोगे वो हवाला पहले भेज दीजिए। इन्होंने मुझसे मांगा, मैंने भेज दिया। मौलवी कासिम ननोतवी एक नंबर का काफिर है, मैं तुमसे कह रहा हूँ। और मेरा अकीदा, मेरे बुजुर्गों का अकीदा, मेरे आला हजरत का अकीदा, हुजूर का सदिया का अकीदा, उनके दोनों सब कुछ है। समझे? मैं कह रहा हूँ मेरा और मेरे बुजुर्गों का यही अकीदा है कि थानवी, ननोतवी, मैठवी, गंगोही, इन चारों के कुफ्र में जो शक करे, इनके कुफ्र को जानते हुए पहचानते हुए, वो भी काफिर है। इस किताब में आपने कुफ्र का फतवा कहाँ से लगाया? किस किताब में? फिर वही बात, मैंने कहाँ से लगाया? मैंने नहीं लगाया, तुमने लगाया। तुमने भी अभी बोला है। तुमने अभी बोला कि हुजूर को जो आखिरी नबी ना माने वो काफिर है। मैंने कहा हुजूर को आखिरी नबी मानना ये अवाम का ख्याल है, आलिमों का भी। तुमने कहा आलिमों का भी। मैंने कहा जो ये कहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना ये अवाम का ख्याल है, अहले बैत पर रोशन होगा कि तकद्दुम या ताखुरी जमाने में बेजात कुछ फजीलत नहीं। आपने वहाँ से क्यों भागे? हम आपसे वहाँ पूछ रहे कि दिल पर जब कुफ्र का। अरे मुल्ला जी तुम्हारे दिमाग में क्या गोबर उबर है क्या? अच्छा एक मिनट
अगर बिलफर्ज तुम्हारी अम्मी मेरे से भी निकाह कर ले, तुम्हारे बाप के भी साथ रहे, तो मेरे से निकाह करके तुम्हारे बाप के साथ रह पाएगी, ये बोलो? या तुम्हारे भाई जो तुम्हारे चचा हैं उनसे निकाह कर ले, या तुम्हारे दादा से निकाह कर ले, रहेगी तुम्हारे बाप से निकाह में? अगर बिलफर्ज तुम्हारे दादा से तुम्हारी माँ निकाह कर ले, निकाह में कोई फर्क नहीं आएगा जब मेरी आगे। अरे गाली मत बक मुफ्ती अनास, भोसड़ी वाला कमीना गाली पे आ गया, इनने गाली मत दी, गाली मत दी इसने। निकाह में अगर बिलफर्ज तेरी अम्मी तेरे दादा से निकाह कर लेती है, जिना कर लेती है, तेरे बाप से निकाह में रहेगी कि नहीं रहेगी, ये बता। अगर बिलफर्ज उगरेली वो तुम्हारी माँ जानिया, अगर बिलफर्ज निकाह में कोई फर्क तो नहीं आएगा। हरामी साबित कर देंगे। अगर बिलफर्ज तेरी अम्मी तेरे दादा से, जानिया थी, समझी? अगर बिलफर्ज तेरी अम्मी तेरे दादा से जो है सोहबत कर लेती है, तेरे बाप के निकाह में रहेगी कि नहीं? तुम्हारी माँ ताइफा थी, रंगी थी, तुम्हारी माँ। देखिए हजरत, ये मुफ्ती साहब है देवबंद के, इसके बाप यही इनका इल्म है। ये पूछिए। मैंने मना किया था कि मैं कहीं आया हुआ हूँ, मैं बात नहीं करूंगा। अरे इससे ये मालूम करो कि अगर इसके दादा से उसने सोहबत कर ली इसकी अम्मी ने, तो इसके अब बाप बात करो, मैं चलता हूँ। हाँ? बात करो, फिर बात करो आप इससे। हैं? अरे ये भाग गया। इससे हेलो, हाँ भाग गया। आ गया ये। अरे इससे ये तो उसके बेवकूफ से कि बिलफर्ज किस मौके महल पे कह रहा है ये यहाँ। अरे यार क्या पता हजरत किस उससे कह रहा था वो। अरे ये बढ़िया पकड़ा आपने, नहीं ये बढ़िया पकड़ा आपने, ये बात सही थी। अभी तो मैं इसे और लपेटता, अभी तो बहुत सारी चीजें, कोई एक ही चीज थोड़ी है इसमें। अगर बिलफर्ज में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जी समझे हजरत? बहुत सारी चीजें हैं अगर बिलफर्ज में। जी क्या बताऊं यार हजरत, गाली पे आ गया यार, ये तो इनने माँ बहन की तो सही कहते यार। कहीं रिकॉर्ड कर लिया आपने? मैंने इससे मना किया था, मैंने कहा यार मैं कहीं आया हुआ हूँ, बात नहीं करूंगा अभी। अरे आपने रिकॉर्ड कर लिया नहीं? हाँ रिकॉर्ड है हजरत। अब रिकॉर्ड बंद कर दिया? ठीक है, बंद कर रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम सुन्नी मुसलमान वफादार रसूल मेरे सर के ताज हैं, तमाम देवबंदी वहाबी गद्दार रसूल दुश्मन रसूल जूते की नोक पर। जनाब हजरात, इस चैनल को आप हजरात ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाबियों देवबंदियों का ओरिजिनल मजरू चेहरा आपके सामने पेश किया जाए। आजकल वहाबी देवबंदी कुछ ज़्यादा ही जलील हो रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही मुझे धमकियाँ भी दे रहे हैं। कभी कहते हैं तेरे खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, कभी कहते हैं तेरा चैनल बंद कराएंगे, कभी कहते हैं कि तू सोच लेना कि तेरा क्या होगा। बहरहाल तरह तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं। बहरहाल मुझे धमकियों से डर नहीं है, मैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फैसला करें।